Okay, so the question is input some elements in a list and perform a linear search on it. Okay, so what is the thing we have to first do? We have to input some elements in a list. So we are going to do that thing at first. Let me save the code at first. So let us ask the user how many elements does he want to input. Then we will create a blank list. मैम Hmm. मैम ऐसा होता है कि जो ना आई जहाँ पर लिखा जाता है फॉर आई इन रेंज, आई को अगर हम थर्ड ब्रैकेट में डाल दे तो वो ऑटोमेटिकली वो लिस्ट बना के देता है, थर्ड में डाल दे तो लिस्ट बना के देता है। I will take your syntax after this code. Okay. कौन सा सिंटैक्स खोलना चाहते हो जान के मैं आंसर दे दूंगी. Let us concentrate on this now. So I think all of you are accustomed up to this, right? कहाँ से चला रहा है? What this is coming? Okay. So all of you are accustomed up to this code? Yes or no? What we have done? We have taken the number of elements you want to input, the user wants to input. Then we have created a blank list. Then we have taken those inputs from the user and appended in a particular list. Right? We have done these things before many times. Is there any problem up to this? No, ma'am. Okay. Then what we have to do, we have to take an element that we want to search. Okay. So let's take an element. मैम हाँ बताओ. वो lst.list.append नहीं होना चाहिए था? Oh sorry, I thought L is the name. Thank you. lst.append नहीं होगा. I forgot the name of the variable name. Okay. Is it clear? Is it Yes, right ma'am. now? Yes, ma'am. Okay. So we have taken an element that we want to search. We have done up to this.
Now you tell me what we have to do. We have taken some element inside a list. We have taken an element that we want to search. Now what we have to do? if ELE in if LSC. if से ही start करेंगे. Okay, then लीनियर सर्च के डेफिनेशन में मैंने क्या बताया था? मैं तो जानती हूँ कि बहुत तरह से सर्चिंग हो सकता है. इस तरह का सर्चिंग तो मैं पहले ही दिखा चुकी थी. इन ऑपरेटर से भी हम सर्च कर सकते हैं, या फिर इंडेक्स फंक्शन से भी हम सर्च कर सकते हैं, जो डायरेक्ट सर्च करके तुमको बता देगा whether the element is inside the list or not. But when I had defined linear search, what I had told you that you have to compare each and every element of the list with the element you want to search. This pro forma you have to maintain, because the question is not telling that you only search that element inside the list and tell whether it is found or not found. It is denoting a particular type of search or particular technique of search that is known as linear search. लिनियर सर्च का मतलब मैंने क्या बताया था उस दिन? तुम्हें एक लिस्ट का हर एक एलिमेंट के साथ जो चीज तुम सर्च करना चाहते हो उसको कंपेयर करना पड़ेगा. यही मेथड तुमको अप्लाई करना पड़ेगा. If the comparison result gives you the true result, then you will print find, otherwise you will print not find. This method you have to maintain positively. ओके, इनसे तो मुझे एक लाइन में पता चल जाएगा, ये तो सबको पता है. बट हियर यू हैव टू मेंटेन द linear search technique. I am repeating it again. This is the thing here, because there there are two types of search actually. One is linear search and other one is binary search. Binary search is not there in your syllabus, but if linear search is given in the question, then you have to follow this methodology. For example, say this is my list and here these are the elements. Okay, these are the elements. Now you want to search 77 or you want to search 66. Okay, so what you have to do, you have to write down the code like this. 66 is being compared with 33. The answer is false. Then it is compared with 44. The answer is false. Then it is compared with 22. The answer is false. Then it is compared with 66. The answer is true. Since the answer is true, here we will you will come out of the loop and you will try till the number is found. ये जो हर एक एलिमेंट्स के साथ कंपैरिजन है ये तुमको दिखाना पड़ेगा. ओके. So ma'am, can we use the define function? हाँ, Define function? डिफाइन फंक्शन यूज नहीं कर सकते हो. Linear search methodology you have to apply without using any defined function or defined operator. ये in भी use नहीं कर सकते हो, because you don't know whether in is using linear search or not. You have to show the linear search methodology. ये जो हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर हो रहा है ये तुमको शो करना है, because this word is given. अगर ये वर्ड छोड़ के क्वेश्चन होता तो तुम इन यूज करो, तो तुम इंसर्ट यूज करो, इट डज नॉट मैटर. बट सिंस दिस वर्ड इज गिवन यू हैव टू शो द मेथोडोलॉजी. नाउ टेल मी. हम एक बार बता दीजिए फिर कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. हाँ, और एक बार बताओ. कौन कौन से ऑपरेटर यूज कर सकते हैं. You can use loops. You can use any arithmetic operators, but don't use this type of membership operator. जिससे कि इससे क्या हो रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आई एम नॉट आई एम टेलिंग यू दैट यू कांट यूज दिस, because if you are using this in operator,
क्या तुम दिखा पा रहे हो कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज बीइंग कंपेयर्ड विद द एलिमेंट यू वांट टू सर्च? ये क्या शो हो रहा है? नहीं हो रहा है. You are just using in operator. The membership operator is giving you true or false. You are not able to see in which way it is being compared. This is the problem. So you have to show that you are comparing the element you want to search with each and every element in the list. This thing you have to show. And for that, whatever you have to do, you can do. अभी हमें क्या शो करना है इस पे ध्यान दो. हमें एक एलिमेंट को दिस ELE को दिस LST का सारा एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है. ये हमें दिखाना है. तो एट फर्स्ट हमें क्या करना है, एक ट्रैवर्सिंग लूप हमें चाहिए. ट्रैवर्सिंग लूप के बिना हर एक एलिमेंट को हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं कभी भी. सो फॉर आइटम्स इन लिस्ट LST, इस तरह के लूप हम यूज कर सकते हैं फॉर आइटम्स इन लिस्ट. सो व्हाट दिस मैम इज. इसमें भी तो इन ऑपरेटर यूज हो रहा है मैम. हाँ, मैम इन इसमें भी तो ऑपरेटर यूज हो रहा है, ये बता रहे हो ना? ओके. यस मैम. बट ये इन ऑपरेटर यूज करके भी मैं हर एक एलिमेंट को कंपेयर जो कर रही हूं ये मैं दिखाऊंगी. द प्रॉब्लम इज देयर कि पहले जब तुम इफ दिस आइटम इन लिस्ट यूज कर रहे थे, देन यू आर नॉट एबल टू शो दैट यू आर परफॉर्मिंग दिस लीनियर सर्च मैकेनिज्म. ये तुम दिखा नहीं पा रहे थे. प्रॉब्लम इज देयर. तुम प्रॉब्लम को समझो. मैं बार बार क्या बोल रही हूँ, मुझे दिखाना है कि मैं लीनियर सर्च मेथोडोलॉजी यूज कर रही हूँ. लीनियर सर्च मेथोडोलॉजी क्या है कि ये जो एलिमेंट तुम ढूंढ रहे हो इसको हमें लिस्ट के हर एक एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हुए जाना है. कब तक जाना है? जब तक मैं उस एलिमेंट को ढूंढ नहीं पा रही हूं या फिर मेरे लिस्ट खत्म नहीं हो रहा है. ये जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म है लीनियर सर्च का. तो तुम इन ऑपरेटर जब तब यूज कर रहे हो, क्या कर रहा था, एक लाइन पे तुम्हें दिखा दे रहा था whether the element is found or not found. तुम्हें रिजल्ट मिल रहा था, लेकिन तुम क्या ये मेथोडोलॉजी दिखा पा रहे थे? नहीं पा रहे थे. बट इन दिस केस आई विल शो दैट आई एम कंपेयरिंग दिस एलिमेंट विथ ईच एंड एवरी आइटम्स इन द लिस्ट. हाउ? यू सी दिस वन. ओके, एट फर्स्ट मेरे कोड समझ लो, देन अगर कोई भी क्वेश्चन रहे आफ्टर दैट यू फील फ्री टू आस्क मी. ओके, सो फॉर आइटम्स इन लिस्ट, ये जो लूप है, ये लूप का मतलब क्या है? ये लूप लिस्ट का एक एक आइटम्स लेके इटरेट करेगा. ठीक है, तो सोचो कि मेरे फर्स्ट इटरेशन में लिस्ट का फर्स्ट आइटम होगा. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल वाला लिस्ट यहाँ पे ले लेती हूँ. फॉर एग्जाम्पल सोचो कि मेरे लिस्ट पे हैं ये सब आइटम. ये सब आइटम है मेरे लिस्ट पे. ठीक है, और मैं सर्च क्या करना चाहती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, मुझे नहीं पता कि यूजर क्या इनपुट देगा. ठीक है, सो मेरा सर्च का आइटम है ELE इक्वल्स टू 44. 44 को मैं सर्च करना चाहती हूँ. कहाँ पे सर्च करना चाहती हूँ? यहाँ पे. ठीक है, इस लिस्ट में सर्च करना चाहती हूँ. फॉर आइटम्स इन लिस्ट, ये जो लाइन है इसका क्या मतलब है? फॉर द फर्स्ट इटरेशन इन दिस फॉर लूप, व्हाट विल बी द वैल्यू? आइटम्स का एस में मिटा देती हूँ बिकॉज हर एक इटरेशन में ओनली वन आइटम विल बी देयर. ओके, सो फॉर द फर्स्ट इटरेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइटम? बताओ. ये लिस्ट को जब फर्स्ट इटरेट करेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आइटम? 11. वेरी गुड. तो हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हर एक आइटम के साथ इस ये को कंपेयर करना है. तो हम क्या लिखेंगे? if item equals to ELE, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं if equals to 0. ठीक है, if का मतलब फाउंड भी लिख सकते हो, फाउंड इक्वल्स टू 0. तो अगर मुझे
एलिमेंट इक्वल्स टू ईएलई हो जाए, उसका मतलब क्या है, मुझे मिल गया एक एलिमेंट, तो हम क्या कर देंगे, फाउंड इक्वल्स टू 1। 1 मतलब ट्रू, इसको फॉल्स या ट्रू भी हम लिख सकते हैं, 0 1 क्यों लिखना। आइटम इनिशियली फॉल्स है, अगर मिल जाए तो आइटम का वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं, ठीक है। और क्या कर लेते हैं, यहां से ब्रेक करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमें मिल गया है एलिमेंट, तो हमें और नहीं ढूंढना है। तो फाउंड इक्वल्स टू ट्रू करके हम ब्रेक करके निकल जाएंगे। कब जाएंगे, अगर मुझे आइटम मिल गया तो। लेकिन यहाँ पे क्या केस है, एलिमेंट का वैल्यू 44 है और आइटम का वैल्यू 11 है, सो दिस इफ विल वर्क और नॉट, ये वाला इफ काम करेगा या नहीं करेगा। आइटम का वैल्यू करेगा क्या है बताओ, हाँ बताओ और एक बार बताओ। मैम, करेगा। आइटम इक्वल्स टू ईएलई, विल दिस बी ट्रू या फॉल्स। आइटम का वैल्यू क्या है करेगा मैम। बताओ, आइटम का ट्रू। वैल्यू क्या है फॉर द फर्स्ट इटरेशन, फॉर द व्हाट फर्स्ट इज द इटरेशन वैल्यू ऑफ 11, आइटम, 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईएलई, 44, 44। so is this if true or false, फॉल्स। false। तो ये वाला if काम करेगा या नहीं करेगा, नो मैम। नहीं करेगा। तो if अगर काम नहीं करेगा तो नेक्स्ट इटरेशन में क्या होगा, if मैंने लिखा है, else मैंने लिखा है, if ट्रू है तो ये काम करो, if ट्रू अगर नहीं है तो क्या काम करो, कहीं पे मैंने लिखा है, नो मैम। नहीं लिखा है। तो जस्ट क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये फॉर लूप का नेक्स्ट इटरेशन में चला जाएगा, मतलब आइटम का वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगा। सो इन द नेक्स्ट इटरेशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आइटम, 22, 22। तो इस बार बताओ ये इफ काम करेगा या नहीं करेगा, नो मैम। नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम फिर से क्या हो जाएगा आइटम का वैल्यू, 33, 33। अब बताओ ये इफ काम करेगा या नहीं करेगा, नो मैम, फॉल्स। नहीं करेगा। देन आइटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 44, 44। अब बताओ ये काम करेगा या नहीं करेगा, यस मैम, इस बार करेगा। करेगा। तो ये फाउंड इक्वल्स टू ट्रू कर जाएगा और ब्रेक करके बाहर आ जाएगा, और इसको इटरेशन का जरूरत नहीं है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यस मैम। ओके। अब सोचो कि इस ईएलई का वैल्यू हो जाए 77, मैं 77 को ढूंढना चाहती हूँ, तो ये क्या होगा, 44 पे भी ये ट्रू नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज आइटम का वैल्यू 44 है और ईएलई का वैल्यू 77 है। विल द इफ वर्क, अगर ईएलई का वैल्यू 77 है तो क्या ये इफ वाला जो कंडीशन है, विल दिस वर्क और नॉट, नो मैम। नहीं करेगा। देन नेक्स्ट टाइम आइटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 55, 55। देन विल दिस वर्क, देन विल दिस वर्क और नॉट, नो मैम। नो। देन नेक्स्ट टाइम आइटम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 66, 66। देन विल दिस वर्क, नो मैम। नो। तो नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, 66 तो लास्ट वैल्यू है, देन फिर क्या होगा, मैम, एरर। नहीं एरर नहीं होगा, द लूप विल बी एंडेड, लूप खत्म हो गया, 66 तक चला जाएगा। इस फॉर लूप में हमने क्या लिखा है, फॉर आइटम इन एलएसटी, तो लूप एलएसटी का आइटम जब खत्म हो जाएगा ये लूप का एग्जीक्यूशन भी खत्म हो जाएगा, द लूप इज एंडेड हियर। ओके, गॉट इट। अब मैम जब प्लीज इसके आगे वो 77, बोलेगा ना कि डिफाइंड नहीं है इसके आगे। नहीं नहीं कुछ नहीं बताएगा। लूप तुम लीस्ट का जो कोड मैंने करवाई थी उस लीस्ट के कोड में जाके देखो, लीस्ट ट्रैवर्सिंग के लिए ये लूप, ये वाला लूप जो है वो सिखाया गया था।
फॉर आइटम इन LST बोल के तुम लिस्ट का सारा एलिमेंट्स को तुम ट्रेवर्स कर सकते हो। जब लिस्ट का एलिमेंट्स खत्म हो जाएगा अपने आप द लूप विल बी टर्मिनेटेड, नो एरर विल बी गिवन। इस लूप का मतलब ही है जितना टाइम एलिमेंट्स है लूप में लिस्ट में उतना टाइम तुम एग्जीक्यूट करो, लिस्ट खत्म तो लूप का एग्जीक्यूशन भी खत्म, लूप के बाहर आ जाएगा कंट्रोल ऑटोमेटिकली। ओके, if you have Yes, forgotten ma'am. you can go to the video for I have taught in list, there it has been told. Clear? Yes, ma'am. ओके तो ये क्या हो जाएगा, 66 तक खत्म हो गया तो लूप के वो बाहर आ जाएगा कंट्रोल। अब हमें क्या करना है, नॉट फाउंड दिखाना है ना, फाउंड या नॉट फाउंड दिखाना है। तो हम लूप के बाहर आके कैसे मिलेगा मुझे वैल्यू के, ये जो एलिमेंट मैं ढूंढ रही हूं ये फाउंड हुआ या नॉट फाउंड हुआ, ये कैसे मिलेगा, हाउ कैन वी डिसाइड? Else करके not found. यहाँ के फॉर के एल्स में, फॉर No, के ma'am. If के else में. दिखाएंगे, देखो फाउंड के वैल्यू से हम दिखाएंगे। अगर हम ऐसे करें इफ फाउंड प्रिंट फाउंड और एलिमेंट फाउंड, और टू बी प्रिसाइज अगर तुमको ये वाला समझ में नहीं आ रहा है वी कैन डू दिस ऑल्सो। इफ फाउंड इक्वल्स टू ट्रू देन प्रिंट एलिमेंट फाउंड, एल्स प्रिंट एलिमेंट not found. We can do like this. क्यों? Found is a variable that is containing false if the element is not found, and whenever the element is found it is containing true, है ना। जब भी हमें इनिशियली तो फाउंड का वैल्यू फॉल्स है, लेकिन जब भी हमें एलिमेंट मिल रहा है तब हम फाउंड का वैल्यू क्या कर रहे हैं, ट्रू बिठा रहे हैं। फाउंड का वैल्यू हमारे पास ट्रू आ जा रहा है। तो अगर फाउंड का वैल्यू ट्रू है तो कब है, जब एलिमेंट मिला है तब भी है ना। तो फाउंड का वैल्यू अगर ट्रू है वी कैन प्रिंट एलिमेंट फाउंड, और फाउंड का वैल्यू अगर ट्रू नहीं है देन वी कैन प्रिंट एलिमेंट नॉट फाउंड। समझ में आया है? Yes, ma'am. Anybody has any confusion regarding this? Any query? किसी को समझ में नहीं आया है ऐसा कुछ है? Okay, then I am stopping the recording here.